ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰਦਾ 70% ਤੱਕ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ US ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ LILC ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੇਅਰ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ शुरू ਕਰਦੇ हैं। थैंक यू वेरी मच। और कुलभूषण जी आपको भी। तो आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है वो बड़ा राइट क्वेश्चन है कि आजकल जैसे सिचुएशन चल रही है पेंडेमिक की, महामारी की, सारी दुनिया परेशान है और साइंस भी इस जमाने में इतनी ऊंचाई पे पहुंची हुई है, जो कंप्यूटर साइंस है वो भी, मेडिसिन साइंस वो भी, लेकिन फिर भी ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा किसी के, और लाखों लोग मर गए और मर भी रहे हैं। कई तरह की दवाइयां वो लाए हैं लेकिन चल नहीं रही। हम ये नहीं कहते कि दवाइयां ना खाओ, दवाइयां भी खाओ, लेकिन इसके साथ ये जो इंडिया भारतवर्ष का अपना एक ज्ञान है, हजारों सालों से ऋषियों मुनियों ने उसको मन का चिंतन मनन करके ये निचोड़ निकाला हुआ है जिंदगी का, उसको भी हमें चिंतन मनन करना है इस टाइम में, ताकि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। तो आपने मेडिटेशन के बारे में पूछा है, तो मेडिटेशन जो है वो अपने मन को मैनेज करने का टेक्निक है कि अपने मन को मैनेज कैसे करना है, उसका जो टेक्निक है उसको मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन
उससे पहले हमें अपने शरीर को भी समझना है कि हमारा शरीर क्या है। ऐसे नहीं कि शीशे के सामने खड़े होकर जो हम देख रहे हैं वो है, इसमें कई कुछ है। ये कुदरत का एक अजीब नमूना है। इसमें जो सृष्टि में, सारी सृष्टि में है, वो मिनी फॉर्म में, छोटे फॉर्म में इस शरीर में भी है। तो इस शरीर के अंदर हमारा मन है। ये जो शरीर हम देखते हैं मांस और हड्डियों से बना हुआ, जो शीशे के सामने दिखाई देता है, वो हम नहीं है। हम इसके अंदर रहते हैं। हमारा जो असली नाम है वो है जीवात्मा। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो एक तो ये बात पक्की हमें सोच में लानी चाहिए कि जो बाहर का जो फ्रेम है वो हम उसके अंदर है। ये मकान है, हम मकान के अंदर रह रहे हैं। लेकिन अगर मकान के अंदर रहना है तो मकान का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो शरीर बना हुआ है ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। एक तो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 महाभूत हैं जिससे ये स्केलेटन बना हुआ है। और इसके अंदर 3 सूक्ष्म शरीर के भी कंपोनेंट्स हैं। वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 एलिमेंट्स जो हैं ये सारे के सारे डेड हैं, इसमें जान नहीं है। लेकिन जब जीवात्मा इसमें एंटर करती है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जी का स्पार्क हमारे शरीर में, सबके शरीर में एंटर करता है तो इसमें जान पड़ जाती है, इसमें मूवमेंट आ जाती है। और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब फिर ये डेड हो जाता है। हम इसको क्रीमेशन में ले जाते हैं। लेकिन जितनी देर हम जिंदा हैं इसको हमें समझना चाहिए कि ये मेरा शरीर है। इस संसार में 84 लाख जोड़ियां हैं, 8.4 मिलियन एवोल्यूशंस। और मनुष्य जीवन उस सब के ऊपर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तभी हम कहते हैं कि भाई मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है। सो बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हजारों लाखों सालों के बाद एवोल्यूशन के थ्रू जाकर फिर मिलता है। तो इतनी बढ़िया चीज मिली हुई है, तो इस ज्ञान से हमें जीना चाहिए। तो इसको जीने के लिए हमें अपने शरीर को समझना है। तो ये जो हमारा 5 भूतों से बना हुआ शरीर है, इसके अंदर इसका जो राजा है, इसका जो किंग है, वो माइंड है। माइंड, हमारा जो मन। मन हम कहते भी हैं, लोग कहते हैं बातचीत में कि जैसा मन वैसा तन। मन ठीक है तो शरीर के ठीक होने के चांसेस भी हैं। अगर मन खराब है, वीक है, उसको कटा छटा है, फोकस नहीं है, तो शरीर भी ऐसा हो जाता है। तो मन को ठीक रखने के लिए जो टेक्निक है उसका नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन। और माइंड जो है उसका जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो उसके पास थॉट्स जाते हैं माइंड के अंदर। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, कई तरह के विचार आ रहे हैं हमारे मन में। तो ये जो हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है माइंड को। एक तो है साउंड, एक है साइट, एक है स्मेल, एक है टेस्ट, एक है टच। तो कानों से हमें साउंड मिलती है, आंखों से हमें जो आईसाइट मिलती है, देखते हैं हम, नाक से हम सूंघते हैं, जुबान से हम भोजन टेस्ट करते हैं जो अंदर जाता है कैसा है। और जो हमारी स्किन है शरीर की, जिसके अंदर ये स्केलेटन लिपटा हुआ है, उसके थ्रू हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 5 तरह की इंफॉर्मेशन माइंड को पल पल चिन चिन मिलती रहती है। अब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जब माइंड को मिलती है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बुद्धि को दे देता है, इंटेलेक्ट को, जो हमारी बुद्धि है, सोच है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोसेस, उसके थ्रू फिर ये सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन होती है। तो जिसको रोकना होता है वो इंटेलेक्ट उसको रोकती है।
लेकिन अगर आपकी बुद्धि ईगो के साथ जुड़ी हुई है, अहम के साथ जुड़ी हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन गलत रोकता है माइंड। और अगर वो जीवात्मा से जुड़ी हुई है तो इंफॉर्मेशन आपकी बड़ी क्लियर है, आपका मन शांत रहेगा, आपके डिसीजन ठीक होंगे, आप रात को ठीक सोओगे, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी इम्यून सिस्टम मैक्सिमम परफेक्ट होगा। तो ऐसी जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चीजें हैं वो रुक जाती हैं। अगर जो इंफॉर्मेशन स्क्रीन होकर जीवात्मा को जाती है तो वहाँ पॉजिटिविटी है, सारी प्यार ही प्यार है, उसमें सेल्फलेसनेस है। आप दूसरों के लिए जिंदा रहते हो, आप दूसरों के लिए काम करते हो, आपके मन में करुणा आ जाती है, पल पल छिन छिन चारों तरफ आपको ईश्वर की प्रेजेंस दिखाई देती है, पशुओं में, पक्षियों में, दरख्तों में, फूलों में, पानी में, आकाश में, सितारों में ईश्वर ईश्वर दिखाई देता है जब हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो इस चीज को पैदा करने के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन से आपका जो माइंड है, आपका जिसमें ये इंफॉर्मेशन देनी है, वो बड़ा अच्छा काम करता है। अगर नहीं तो इसका हम बहुत सफरिंग करते हैं अपनी लाइफ में। तो दिस इज द मेडिटेशन के व्हाट इज मेडिटेशन। तो मेरे मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे तो बात ही करके, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेडिटेशन हो गया है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेडिटेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बताता है, बट जब हम करने बैठते हैं तो हमारे अंदर जो विचारों का जो एक तूफान होता है वो थमने का नाम नहीं लेता है। तो उसको हम कैसे थमाएं और मेडिटेशन कैसे करें, क्या इजी तकनीक है? ये कुलभूषण जी, आपने बड़ा अच्छा, बहुत ही टाइमली क्वेश्चन पूछा है कि मेडिटेशन तो समझ लिया क्या होती है, लेकिन करें कैसे। तो एक महर्षि हुए हैं इंडिया में जिनका नाम था पतंजलि, पतंजलि महर्षि। उन्होंने 8 स्टेप बताए हैं मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन 2 पार्ट से होती है, एक है हठ योग और एक है बुद्धि योग। हठ योग और राज योग, उसको बुद्धि योग भी कहते हैं। ये 2 टेक्निक हैं। तो उसमें 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि इज द कल्मिनेशन ऑफ मेडिटेशन। तो इसके जो पहले 4 स्टेप हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये आपके शरीर को जो जो आउटर बॉडी है उसको ठीक करने के लिए है, और इसको हठ योग कहते हैं कि हाउ टू कीप द आउटर फ्रेम इंटैक्ट। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, इम्यून सिस्टम ठीक रहे, आपकी आई साइट ठीक रहे, आपकी स्पीच ठीक रहे। तो ये उसके लिए 4। द लास्ट 4 स्टेप, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको राज योग कहते हैं। ये माइंड के ऊपर है, माइंड को कैसे ठीक करना है। लेकिन जितनी देर आपका शरीर ठीक नहीं है तो वो माइंड को गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। सो शरीर को भी ठीक करना है और माइंड को भी ठीक करना है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है कुलभूषण जी, उसमें ये है कि ये जो पहले 4 स्टेप है महर्षि पतंजलि ने कहे कि यम, यम मीन्स प्योरिटी, शुद्धता। तो उसमें आपकी स्पीच ठीक होनी चाहिए, जो कहो वो यू शुड मीन दैट। ये नहीं कि लिप सेम्पटी कर दी, लोगों की चापलूसी कर दी, वो आपका मन गंदा गंदा रहेगा, गंदा ही रहेगा। तो एक तो आपको स्पीच का डिसिप्लिन है, एक है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुल, सच्चाई, ठीक कहना, ठीक कहना। और एक है आपका भोजन, जो आप खाते हो, क्या खाते हो। उस जो खाते हो, अगर उसमें वायलेंस है, वो अगर उसमें फियर है, अगर उसमें कंपैशन नहीं है, तो वो भोजन जो हम खाएंगे, आई एम नॉट सेइंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, लेकिन दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर इन द फूड। अगर भोजन, क्योंकि वी आर व्हाट वी, हम वही हैं जो हम खाते हैं।
अगर भोजन हमारा प्योर है, पवित्र है, सिलेक्टेड है, क्वालिटी है उसमें, तो वो आपके शरीर को बिल्कुल ठीक, आपके माइंड को ठीक कर देगा। फिर गंदे मंदे विचार नहीं आते, क्योंकि भोजन अच्छा है, भोजन अच्छा है। और भोजन, और एक ये भी देखना है इस स्टेप में, यम में, कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सोचता क्या हूँ। अगर किसी को एक वाइट पेपर दिया जाए और उसको कहो कि भाई 10 थॉट्स इस पे ऊपर लिखो, 10 चीजें लिखो कि दिन में जब आप उठते हो, जब आप सोते हो, पेन डाउन उनको लिखो पेपर के ऊपर भी आप क्या सोचते हो। तो जो हम बातें अब कर रहे हैं मेडिटेशन की, हो सकता है वो उसमें लिखे ही ना, वो मॉर्गेज की लिखेंगे, जॉब की लिखेंगे, प्रॉब्लम लिखेंगे, बच्चों की, इधर की उधर की। इसमें अगर किसी को याद आ गया तो वो मे भी नंबर 10 पे लिख देगा। तो हमारी सोच बड़ी स्कैटर्ड है, हमें जिंदगी का पता नहीं है कि हम आए क्यों हैं यहाँ, इसकी प्रायोरिटीज क्या है। तो एक तो इसको सेट करना है कि भाई मेरी सोच ठीक रहे, ठीक रहे, और ठीक तभी रहेगी जब मुझे पता हो कि भाई 3 क्वेश्चन है इसमें, जैसे दे आर रिलेटेड टू मेडिटेशन जो आपने पूछा है। 3 क्वेश्चन हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए कि भाई मैं हूँ कौन, हु एम आई। अगर किसी को पूछो, आप किसी को पूछो तो वो कहते हैं कि अपने पेरेंट्स का नाम दे देते हैं कि मैं उनके थ्रू आया, और कोई कह देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, किसी से सुना हुआ है, किसी महात्मा ने, सेंट ने, स्वामी ने गुरुद्वारे में, मस्जिद में सुन लिया है, तो उसको ये पता नहीं है, वो उसने रट लिया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा होती क्या है पता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज माय मिशन ऑन दिस प्लेनेट, मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, करने क्या, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं, एवरीथिंग, जब हम इस शरीर को, इस ग्लोब को छोड़ते हैं, धरती को छोड़ते हैं, एवरीथिंग इज जीरो आउट। आपकी साइटेशन, सर्टिफिकेट, कारें, मकान, दुकान, जॉबें, बिजनेस, खाली हाथ चले जाते हैं, सबका सब यहाँ रह जाता है, वो आए भी खाली हाथ थे। तो ये जो ड्रामा हम करते हैं बीच में, ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। या तो मैं कुछ साथ लेके जाऊं, वो होता नहीं है। तो ये जितना हम खेल खेलते हैं वो ईगो का तमाशा है, ईगो के, ईगो किंगडम क्रिएट करते हैं, मेरा 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 मेरा, और फिर जाने के बाद सब कुछ ऐसे ही रह जाता है। अब लोग रिटायर्ड हैं, बहुत सारे रिटायर्ड के सीनियर जो हैं, वो विल्स और ट्रस्ट बनाने में लगे हुए हैं कि ये कहीं चला ना जाए, पता तो है कि साथ नहीं जाएगा, तो वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, विल क्रिएट करते हैं। लेकिन विल ट्रस्ट जो है वो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, आपके पहले तो कुछ ना पड़ा। So that cannot be the objective of life. So I must understand कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों यहाँ आया। और तीसरा क्वेश्चन है कि मैं कहाँ चला जाऊंगा, where I will go। इतने मैंने रिलेशन क्रिएट किए, माता पिता, बेस्ट फ्रेंड, कई कुछ क्रिएट किया। नरेंद्र जी, मेरे को बस मन में ना एक यही सवाल आ रहा है, जैसे आपने बताया कि मतलब जो आत्मा है, जो मेडिटेशन है, वो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर है, जो भी कुछ है ना। बट क्या है कि उसको सीखने के लिए तो हमें इस शरीर से ही गुजरना पड़ेगा ना। मतलब शरीर तो एक वो गेट हो गया कि उसको, उस गेट में से हमें एंटर करना, तब जाके हमें वो खजाना मिलेगा, है ना। आत्मा जैसा जो खजाना है, तो इस शरीर को पहले ठीक करना पड़ेगा या आत्मा को पहले ठीक करना पड़ेगा जिससे शरीर ठीक हो, या पहले शरीर को ठीक करना पड़ेगा जिससे मन खुश रहे। तो दिस इज अ वेरी बड़ा लेजिट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने से, ज्ञान से भरपूर है। ये महर्षि पतंजलि थे, ये जो अभी 8 स्टेप मैंने आपको बताए हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, माइंड की शांति के लिए और शरीर को ठीक रखने के लिए, ये सारे स्टेप इसी ऑर्डर में लेने पड़ेंगे, नो जंपिंग अराउंड। सो द फर्स्ट स्टेप इज, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, यम। सेकंड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मींस टाइम को ऑनर करना, टाइम को ऑनर करना इज डिसिप्लिन। मैंने आपको कहा 11 बजे आऊंगा, आई शुड बी देयर, आई शुड नॉट एक्साइट यू बाय गोइंग देयर 11:15। तो मैंने तो आपको एक्साइट कर दिया,
लेकिन जो अगर मैं आपको एक्साइट कर रहा हूँ तो मेरा मन भी अशांत है, तो मैं शांति तो ले नहीं सकता। तो ऑनर टाइम, टाइम की जो ऑनर इज्जत करें। हाँ हाँ, उसको, उससे आपका मन शांत रहे, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर हम अशांति फैलाते हैं, मैं टाइम से नहीं जाता, तो अगर मैंने प्रीति जी को टाइम दिया था तो ये एक्साइट हो गया कि कोर्सा तो आए नहीं। बिल्कुल। तो ये जो नरेंद्र जी, करना है, जो हम करते हैं, आपकी जो मोस्ट ऑफ द पीपल, वो माइंड जो है अनसेटल रहता है, वो मेडिटेशन के लिए तैयार नहीं है बंदा, अगर उसको इस चीज का पता नहीं है। तो यम, नियम, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, देन द तो आसन, थर्ड स्टेप इज आसन। स्ट्रॉन्ग होता है नरेंद्र जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि ये जो आपकी बात बिल्कुल आपने 100% सही है कि टाइम और मन इतना स्ट्रॉन्ग हम बना सकते हैं। कुलभूषण जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर रात को हम सोते समय अपने मन से बोल देते हैं ना कि हम सुबह 7 बजे उठेंगे या 5 बजे उठेंगे, मन आपको किसी भी क्लॉक की, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन आपको उसी समय उठा देता है। बिल्कुल सही। और मेरे को कई बार ऐसा हुआ कि मैंने रात को बोला कि मैंने 5 बजे उठना है, तो मेरी आंख खुल गई 5 बजे पूरे, मैंने देखा कि 5 बजे उठ गए, लेकिन मेरा फिर मन से हो गया कि नहीं, थोड़ा सा और 5 मिनट। फिर से मेरे को ऐसे लगता है कि कोई मेरे को पुकार रहा है। तो मतलब कि सर की बात बिल्कुल ही सही है कि पहले मन को हम स्ट्रॉन्ग करें। मन वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि जो हम चाहें इसको लगाम में ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बात की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम रात को, मैं खुद ऐसे करती हूँ, जब भी बोल देती हूँ कि रात को मैंने इतने बजे उठना है, तो डायरेक्ट किसी, मैंने आज तक अलार्म नहीं लगाया, बिना अलार्म के मैं उतने बजे मेरी आंख खुल जाती। ये बात और है कि मैं लेजी हो जाऊं, दोबारा सो जाऊं। तो एक और बात है, शेयरिंग विद यू विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, कि इंडिया में जहाँ हम पले हैं, बड़े होकर आए हैं, हमारे माता पिता ने भी यही हमें सिखाया, उनके माता पिता ने भी यही सिखाया कि जब सूरज निकलता है, सूरज निकलने से पहले आप उठ जाओ। उसको कहते थे, ये मेडिटेशन में एक टेक्निक है कि ऑनर द एनर्जी। ये जो सूर्य देवता है, उनके बिना ये सृष्टि चलती नहीं। वो आते हैं तो फल, पौधे, बेल पौधे, हम सब उठ जाते हैं। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनको इस टेक्निक को अपनाना चाहिए कि सूरज से पहले उठना और सूरज को नमस्कार करना, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति जिससे ये संसार चल रहा है वो तो आ गई, हम सोए हुए हैं। ये तो ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट को घर बुलाया है, आपने दरवाजे नहीं खोला। तो वो जो पहली किरण आती है, जो ऐसा करते हैं, जिन्होंने ऐसा अभ्यास किया हुआ है, उनका माइंड शांत होता है, कि उनका कनेक्शन है सेलेस्टियल विजन से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग ऐसा करते हैं डिसिप्लिन के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं यम, नियम, और उसमें टाइमिंग है, टाइमिंग, तो ऐसा करने से यू बिकम ए स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड है आसन। हमें ये नहीं पता कि ये जो हमारा शरीर है, हमने बैठना कैसे, उठना कैसे। लोगों को इतनी दर्दें हैं क्योंकि उनको उठना बैठना आता नहीं। बैठते हैं तो जो, अगर मेडिटेशन के आप स्टूडेंट हो, चाहे चेयर पे भी बैठोगे, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सीधी ऑल द टाइम। क्योंकि उस रीढ़ की हड्डी के अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स हैं छुपे हुए। 7, फिर कभी बात करेंगे, 7 एनर्जी सेंटर्स हैं आपकी रीढ़ की हड्डी। अगर उनकी अलाइनमेंट नहीं, तो हम बड़े दुखी हैं, कई तरह की पेन्स होती हैं। तो अगर जमीन पे बैठते हैं, तो आजकल तो रवाज ही नहीं रहा जमीन पे बैठने का, लोग बैठ ही नहीं सकते। वो जो पद्मासन में बैठी, वो अपनी जो टांगे हैं वो फोल्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन जितनी देर आप उसको सीखोगे नहीं, तो शरीर आपका जो है फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी शरीर से, तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन,
ये बाहर का फ्रेम की मैं बात है। यम नियम, राइट, आसन, द लास्ट है प्राणायाम। ये जो प्राण है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, जब ये निकल जाती है तो वी आर डेड। और जब हमारे शरीर में है ये ऑटोमेटिक, आपने कुछ भी नहीं करना, ईश्वर ने ये सारा शरीर ऑटोमेटिक रखा हुआ है, आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक रोटी की गिराई मुंह में डाल लेते हैं, फिर बातें करते रहते हैं। आप ध्यान से सोचो कि रोटी की गिराई जो गई है वो कितना प्रोसेस के थ्रू गई है, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सारा ऑटोमेशन। ऐसे ही जो सांस है हमारा, ये भी ऑटोमेशन, जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राण अपान, इनसाइड आउटसाइड। जब ये प्राण का उसको अवेयरनेस रखने की मेरे अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि जो हमारी उम्र है, जिसको कहते हैं कि लेट अस से 100 ईयर है, तो 100 एक मिनट में मैं कितने सांस लेता हूँ, लेट अस से आई टेक 70, राइट, तो 70 एक मिनट में मैं सांस लेता हूँ। तो अब अगर 100 ईयर में इसकी कैलकुलेशन की जाए और डिस्कशन, लेट अस से 4 बिलियन सांस मैंने लेने हैं 100 ईयर में, राइट, लेकिन डेथ डे इज फिक्स्ड। हम कहते हैं कि जब जन्म लेते हैं मृत्यु भी हमारी फिक्स है। तो लेकिन कईयों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, कईयों की बाद में होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए है कि जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 70 सांस एक मिनट में, वो 90 लेते हैं, तो उनका 100 ये जल्दी खत्म हो जाता है, तो टोटल में खत्म हो गया। तो इस बात को समझकर प्राणायाम करना, रेगुलेट करना अपने प्राण को, कि ये शक्ति है, इट इज नॉट ए फ्री थिंग, इट इज अ वेरी प्रेशियस थिंग। अब देखो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती क्या हालत हो जाती है, लेकिन हमारे सिस्टम में सब ऑटोमेटिक रखा हुआ। तो इस बात का ज्ञान रख के अपने सांस को, अपने प्राण को रेगुलेट करना, इट इज ए वन ऑफ द स्टेप टू डू मेडिटेशन। मैं एक बात पूछना चाहूंगा नरेंद्र जी से, बहुत अच्छा बताया, ये सब तो मुझे इतना पता ही नहीं था, थैंक यू वेरी मच। और आप जैसे कह रहे हैं कि एक मिनट में कितनी सांस एक नॉर्मल व्यक्ति को लेनी चाहिए, आप मुझे ये बताएं। नहीं देखो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी पल्स लेता है, राइट, तो पल्स की जो बीट है वो 70 होती है, कितनी होती है, अराउंड दैट। तो वो जो बीट है, इट इज अटैच्ड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आपकी बीट जो है वो इरेगुलर है, जो आप टेस्ट करते हैं, राइट, तो उसी से उनको पता चल जाता है कि ये बंदा हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। सो हमें ये देखना है कि जो मैं प्राणायाम में हम बैठते हैं, तो जो अंदर सांस जाता है वो उसका प्रोसेस है। प्राणायाम इज ए टेक्निक है, कैसा मैं अपने आप का जो इस प्राण शक्ति को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करूं। तो सर मैं वही आपसे एक उसको मैं कैसे यूज करूं, उसको प्राणायाम कर। तो उसमें ये जो, जैसे कोई बहुत ड्रिंक करता है वो सांस ठीक ले ही नहीं सकता, जो स्मोक करते हैं दे कैन नॉट, उनके जो ये लंग्स हैं वो उनको सांस लेने नहीं देंगे, राइट, या जल्दी जल्दी लेंगे तो उनकी उम्र कम हो जाती है। तो उम्र कम होने का मतलब कि जो मैंने 5 साल में सांस लेने थे मैंने 3 साल में ले लिए। तो यहाँ तो मैं मेरा रेस्पिरेटरी एक सिस्टम गलत है। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, जो एक उमड़ रहा है, मैं अपनी जिज्ञासा के लिए सिर्फ, कि जैसे हमारे कुछ जो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से लगा लो, या जो बड़े बुजुर्गों से सुना है उनके आधार पे ले लो, कि हम लोगों के मन में यही रहता है कि जितनी भगवान ने उम्र दी है वो उतनी ही भुगत के जाएगा। लेकिन उसकी उस बात की बजाय मुझे आपकी ये बात ज्यादा आज सच लग रही है कि इंसान जो हमारा एक सांसों का सिस्टम है, हमारे अंदर के सिस्टम से जुड़ा रहता है, और कुछ लोग अपनी सांस जल्दी खत्म कर लेते हैं।
तो आई मीन कि वो सिक होते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं। तो इसके बारे में मेरे को आप दोबारा से अच्छा एक बार फिर और बताइए कि ये ग्रंथों वाली बात, मुझे आपकी बात के सामने वो बात सही नहीं लग रही है, ये आपकी बात सही लग रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वाकई में कुछ जो आप जैसे लोग हैं, अच्छे ज्ञानी लोग हैं, गुणवान हैं, वो अपना मेडिटेशन करते हैं, खाना पीना शुद्ध है और लंबी एज जीते हैं। और इसके बदले में आज की नौजवान पीढ़ी है, खाना पीना सही नहीं है, जंक फूड खाते हैं, मेडिटेशन का नामो निशान नहीं है, गलत ढंग से अपनी उनका जो लाइफस्टाइल है वो मॉडर्न कहते हैं, लेकिन वो मॉडर्न की बजाय गलत तरीके से वो जीते हैं। तो हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा 45-50 के पीरियड के दौरान ही उनको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और कईयों की तो 50 से पहले ही डेथ भी हो जाती है। तो मुझे इस तरीके से मैं देख रही हूँ, तो मुझे आपकी बात सही लग रही है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। एक बात और है कि अगर ध्यान से देखा जाए कि जो कुछ अभी हो रहा है, लोग फास्ट फूडों में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि फूड जो खानी है, भगवत गीता की मैं बात करता हूँ, जो एक इलीटिस्ट फिलॉसफी है, इंडिया की सबसे बड़ी देन है मनुष्य जाति को। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हुआ हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, आई एम सीटेड इन योर हार्ट। तो अगर मुझे कन्विक्शन हो जाए कि वाहे गुरु मेरे हृदय में बैठे, गुरुद्वारे में नहीं है, मंदिरों में नहीं है, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तो आपका शरीर मंदिर है, गुरुद्वारा है। तो जो गुरुद्वारे में नहीं करते, मंदिरों में नहीं करते, शरीर के साथ भी ना करो, सीधी बात। बहुत अच्छा। तो क्योंकि इसको, और फिर जो आप भोजन खाओगे, जब मुंह खोलोगे तो अपने लिए नहीं खाओगे, वो भाई गुरु जी के लिए खाओगे, भगवान श्री कृष्ण के लिए खाओगे, वो अंदर बैठे हुए हैं। फिर आप भोजन को भोजन नहीं कहोगे, आप प्रसाद कहोगे कि ये मैं प्रसाद खा रहा हूँ, क्योंकि वो बैठे हुए हैं। और फिर अगर वो अंदर बैठे हुए हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी कि मैं गलत बातें कैसे करूँगा, वो तो बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता चला, जैसे मैं, आप मेरी बात कर रहे हो, लेकिन उनको तो पता है, उनको पता। तो इस अवेयरनेस से जिंदगी रेगुलेट हो जाती है, और जब रेगुलेट होती है आपके चेहरे पे नूर आता है, आपकी बातचीत बदल जाती है, आप प्यार से भर जाते हो। नहीं तो आप ये देखो जो आजकल लोग कर रहे हैं, क्योंकि आई वांट टू शेयर विद यू, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। उसमें जो एक बात है कि अगर मन जो है आपका, इट्स ए वेरी गुड शॉर्ट कट फॉर पीस ऑफ माइंड, कि अगर मैं दूसरों की बुराई को ना रोकूं, दूसरों की अच्छाई के ऊपर फोकस करूं, तो आई एम पीसफुल। लेकिन हम करते उल्टा। अगर मैंने किसी के साथ 10 साल बड़ी भलाई की, बड़ा काम किया, बड़ी सेवा की, एक दिन बैड डे मेरे से कोई गलती हो जाती है, वो बंदा मेरे 10 साल की सेवा बिल्कुल डिलीट कर देता, और ये जो मिस्टेक हुई है उसको मैग्नीफाई करके, फ्रेम करके अपने माइंड में जोड़ देता, और जितनी देर जिंदा है वो उसको बोलता नहीं है कि हाउ कम सो एंड सो सेड दिस थिंग टू मी, उछाई उसकी सारी भूल गई। तो ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स करना चाहिए, जिसको कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। इट इज ए वन एक्ट प्ले। हम करते तो हैं, हम फॉरगिव तो कर देते हैं, किसी ने आके मेरे फॉरगेट चरणों नहीं का, करते। वी नेवर फॉरगेट, वो मेमोरी में सीमेंटेड है। मेडिटेशन में आप इसको रिवर्स कर दोगे। इट्स ए टेक्निक कि आप लोगों की अच्छाई को रोक के रखो, गलती जो होती है लेट इट गो, क्योंकि आपकी मेमोरी है। भगवान श्री कृष्ण, देयर इज अनदर वर्ड्स इन भगवत गीता कि आई एम सीटेड इन योर हार्ट, आई एम द मेमोरी। अगर वाहे गुरु लॉर्ड कृष्णा मेरी मेमोरी है,
हाउ कैन आई मॉलिश दैट मेमोरी, उसको मैं कैसे अपवित्र कर सकता हूँ। उसमें पवित्रता तभी आएगी अगर मैं ठीक चीजें रोकूं अपनी मेमोरी में, मेरिट्स रोकूं, डीमेरिट्स जाने दूं। अगर मैंने डीमेरिट्स भर दिए हैं तो एक तो लॉर्ड कृष्णा की हम इंसल्ट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर में मेमोरी हूँ आपकी। तो ऐसे जो विचार हैं, ऐसी जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है, इसको डाइजेस्ट करके अगर हम अपने जीवन को ठीक करें, देन वी आर ए स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन। जो आपने कुलभूषण जी ने पूछा था कि मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं, तो बैठ तो गए, लेकिन जो चीजें आपको अभी याद नहीं है वो सारी याद आती है, क्योंकि हमने ये स्टेप नहीं लिए हुए, हमने ये स्टेप नहीं लिए। अच्छा नरेंद्र जी, मैं एक बात और आपसे पूछूंगा इसी बात पे, वरना मैं भूल जाऊंगा अगर मैंने अभी नहीं पूछा आपसे। तो जैसे एक ये गाना है ना कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा खा गई। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे कि कुछ ना कुछ तो है इस सृष्टि में जो वो खुद ही अपने हिसाब से हैंडल करती है, वो इंसान नहीं कर सकता। वो चाहे हम कितना मेडिटेशन कर लें या कितना अपना शरीर का ध्यान रख लें। और एक होती है जैसे उनको एक मतलब दो भाई होते हैं जैसे, है ना, सपोज दो भाई हैं, तो एक भाई है वो मदिरा का भी सेवन करता है, वो टबैको भी खाता है, वो अपना कोई ध्यान नहीं रखता। दूसरा भाई है वो उससे अपोजिट है, वो धार्मिक भी है और वो अपना पूरा ध्यान रखता है, ना मदिरा का सेवन करता है, बट उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरे जो है जो बिल्कुल प्रकृति से बिल्कुल ही विपरीत है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो लोग कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया कि जाना तो उसको था और प्रॉब्लम उसको हो गई। तो ये क्या होता है, आप मुझे ये बात बताएं। अगर प्रकृति हमको कंट्रोल नहीं करती है तो कौन करता है फिर? इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो आपने पूछा है, और इसमें द थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन एंड द थियरी ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, दे किक्स इन। ये दो जो थियरीज हैं कि पुनर्जन्म और कर्म, इन दो चीजों से ये जुड़ी हुई आपकी बात है कि हम देखो, हम अकेले आते हैं, पहले तो ये हमें समझना चाहिए। ये भाई, ये माँ, ये बहनें, ये यार दोस्त, सब हम बनाते हैं। हम अकेले आए थे, कोई मेरे साथ भाई नहीं था। भाई बन गया जब मैं आ गया, तो मैं ही बनाता जा रहा हूँ, राइट। मैं तो अगर मेरे फर्ज करो माता पिता के थ्रू दो तीन बच्चे और आए हैं, दो दो जो है वो बहनें हैं, दो भाई हैं, तो हैं तो वो इंडिविजुअल, उनकी अपनी लाइफ की जर्नी है। सिर्फ कॉमन ये है कि वो माता पिता के थ्रू आए, दैट्स इट। और कोई बात कॉमन नहीं है। आप एक ही छत के अंदर रहकर, एक ही फूड खाकर, ऑल दी फैसिलिटीज सेम, चारों के चारों बच्चे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका जो जन्मों का लेखा जोखा है, बैलेंस शीट जो है, वो वेरी सटल फॉर्म में आत्मा के ऊपर छा के वो जन्म लेते हैं, और उसी के मुताबिक उनका चिंतन मनन होता है, उसी के मुताबिक। लेकिन सिर्फ कॉमन चीज ये होती है कि मैं माता, एक ही माता पिता है, बाकी कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई किसी की भी नहीं है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल हैं। तो ऐसे ही जीवन में जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हिंदी में कहते हैं चित्रगुप्त, कि जो आपके हृदय में बैठकर आपकी सीक्रेटली पिक्चर ले रहे हों, ऐसा कैमरामैन, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। इज साइलेंटली, विदाउट टेलिंग यू, यू आर बीइंग फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पिक्चर तो रोज बन रही है। अगर मुझे अवेयर हो कि भाई मेरी तो पिक्चर बन रही है, तो जैसे कैमरामैन मेरे सामने आता है, अभी भी हम टीवी के ऊपर है, तो वी आर ट्राइंग टू कीप द फेस वेरी प्रेजेंटेबल, राइट। लेकिन इस शो के बाद हम उसी मोड में चले जाएंगे। ऐसे अगर मुझे इस बात की कन्विक्शन हो जाए कि मेरी पिक्चर हर समय पल पल छिन छिन आ रही है,
तो मेरे चेहरे पे स्माइल रहेगी कि भाई मैं अच्छी एल्बम बने मेरी, क्योंकि वो एल्बम आपके साथ जानी। तो जब चेहरे पे स्माइल आती है तो आपका अंदर से हृदय खुल जाता है, अदरवाइज आप हम जुड़े हुए हैं। तो जब आपकी पिक्चर जो आपके साथ जाती है उसी में लेखा जोखा है, वो बैलेंस शीट है अच्छे कर्मों की, बुरे कर्मों की। एक भगवद गीता में श्लोक है कि जैसे फूलों की वादियों में हवा का झोंका जाता है, निकलता है, तो अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाता है, राइट। हवा का झोंका जब वादियों से, जहाँ फूल ही फूल है, वहां से गुजरता है तो वो फूलों की सुगंध ले जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन की सुगंध, सुगंध में अच्छे कर्म, फुल ऑफ कंपैशन, एम्पैथी, करुणा से भरे हुए, सेल्फलेस मोड में जब हम कर्म करते हैं, वो जो उसकी खुशबू है वो हमारे साथ जाती है, और दुर्गंध भी जाती है जो हमने मैसअप किया हुआ है साथ। तो ये सुगंध और दुर्गंध जो हमारे कर्मों के ऊपर है, इट इज इन ए मिनी फॉर्म, इन ए वेरी सटल फॉर्म। जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो ये इंफॉर्मेशन, कोडेड इंफॉर्मेशन हमारे साथ जाती है, और फिर जब हम जन्म लेते हैं then that coded information is looking for the compatibility. जब उसको compatibility मिलती है, it start operating. 5 भाई हैं, 5 डिफरेंट, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जो थी, जो कोड थे, अब डिकोडिंग हो रही है, तो सारे के सारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो दिस इज द टेक्निक, दिस इज जो आपने पूछा है कि ऐसे है ये ऐसे। तो अगर इसमें जो मेरी या आपकी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने जो कर्म करूं, कर्म डेली बेसिस के, ये नहीं डेली बेसिस पे जो मैं खाना खाऊं वो पवित्र हो, ईश्वर के लिए खाऊं। जो मैं बात करूं ठीक करूं, ताकि मेरी खुशबू मेरे साथ जाएगी, कोडिफाइड हो जानी है, इसके कोड डिफरेंट है। तो इतनी फ्रीडम ये तभी होगा जब मेरा माइंड फोकस्ड होगा। अगर माइंड फोकस्ड नहीं है तो हमें जैसे वर्ल्डली अफेयर्स में, ऑफिस में या अदर बिजनेस में, अगर मेरा माइंड फोकस नहीं है, आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम स्कैटर्ड। तो माइंड को फोकस करने के लिए मेडिटेशन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो इसको हम इसी की बात कर रहे हैं कि अभी हमने मेडिटेशन टच नहीं किया, अभी दीज वर द प्रेपरेटरी स्टेप्स फॉर जो हमने कहे हैं। नहीं, आपकी तो इतनी बात सुन के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ और ही हूँ, तो लाइक मे बी आज पूरा दिन अच्छा ही गुजरेगा आपसे बात करिए तो। बिल्कुल वी विल कंटिन्यू विद प्रीति जी टाइम परमिट्स। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, अभी बहुत कुछ जानना था, लेकिन आपका जो टाइम है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपका टाइम कम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारा पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन का ही आपने इतना सारा मतलब हो गया कि अभी भी कम लग रहा है। नेचुरोपैथी तक तो हम पहुंचे ही नहीं, आयुर्वेद तक तो इसलिए आपके समय की कदर करते हुए, कुलभूषण जी के समय की कदर करते हुए, क्योंकि सबको काम है, तो हम ये प्रोग्राम तो यहाँ खत्म करेंगे, लेकिन आपसे एक वादा लेंगे कि जो नेचुरोपैथी हमारा रह गया है वो पार्ट नंबर 2 आप हमारे साथ जरूर आएंगे। अभी तो मुझे लग रहा है कि मेडिटेशन के बारे में भी हमें आपसे बहुत कुछ जानना है, क्योंकि इतना सा आपके पास जो इतना सारा ये वी आर ऑलवेज एट योर बैक एंड कॉल। जब भी आप बुलाओगे कुलभूषण जी को, हमें, हम आपके साथ। अरे प्रीत जी, इनके पास तो इतना खजाना है कि आप हमारे लिए तो ये अभी बहुत कम है। बहुत खजाना है इनके पास, बहुत हमें आपसे जो है ज्ञान लेना है। तो आपकी जो समय मैंने आपसे we are all students, we are all students। बिल्कुल, और हम आप स्टूडेंट हैं, हम आगे आपके स्टूडेंट हैं। तो आपके बस समय को देखते हुए मुझे बस सबसे इजाजत लेनी होगी, खत्म करना होगा, जैसा कि मैंने आपसे समय इतना लिया था। पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने इतना सारा समय दिया
हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरा पार्ट जो है इसका नेचुरोपैथी के बारे में और मेडिटेशन के कुछ और सवाल है हमारे मन में जानने के लिए, हम दोबारा आपको फिर जरूर बुलाएंगे जैसे आपका समय लगेगा। कुलभूषण जी, आपका भी बहुत अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। जो मैंने पूछना था आपने मेरे से पहले ही पूछ लिए, तो बात एक हो गई कि कई क्वेश्चन आपने ऐसे पूछे जो मेरे को बाद में आएगी, ये मुझे भी पूछना चाहिए था, आपने पूछ लिया। तो मतलब कि ज्ञान से ज्ञान और बड़ा है। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आप देखें कि नरेंद्र जी ने इतने अच्छे तरीके से मेडिटेशंस के बारे में जो बताया है, उसको आप ध्यान से अगर सुने, उसको अपने जीवन में अपनाएं, तो आप देखेंगे कि ये जो फिलहाल तो मैं एक अभी का भी बता देती हूँ। अभी मैंने इनसे बात शेयर भी की थी कि जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जिसकी जितनी लिखी होती है उतना भोग के जाता है। लेकिन आज जब मैंने इनकी बात सुनी है कि जो हम एक नॉर्मल तंदुरुस्त शरीर जो सांस लेता है तो वो लंबी आयु जीता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ सिकनेस होती है तो जल्दी जल्दी सांस लेने की से हमारे सांस भी जल्दी खत्म होते हैं। यही कारण है कि हमने देखा है कि कई हमारे यहाँ पे बुजुर्ग 100 साल से भी ज्यादा हैं। 100 कई बुजुर्ग मैंने देखे 110 साल की एज के, 125 साल की एज के, और इवन मेरे पापा के नानी जो थे उनके बाल दोबारा से ब्लैक आने शुरू हो गए थे। अरे वाह, सुंदर, बिल्कुल सुंदर, वो जैसे एक गुड़िया की तरह लगती थी 125 साल की एज में भी। गुड़िया जैसी गोरी चिट्टी चमकदार फेस उसका, बाल दोबारा से ब्लैक आने शुरू हो गए। और किसी भी यंग लड़की को वो पीछे धक्का देने वाली बात कहते हैं ना कि उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो सर ने बहुत ही अच्छी तकनीक बताई है, ढंग बताए हैं, मेडिटेशन को जीवन में अपनाए। हमारे ऋषि मुनियों गुरुओं ने सबने जो इनको अपनाया तो हमें ये खजाने के रूप में दिया। हमारे नेचर ने है, हमारे जो भगवान ने हमें आयुर्वेदिक बहुत अच्छी विधियां दी हैं जिससे हम अपने तन मन दोनों को ही सेहतमंद रख के अपनी अच्छी जीवन गुजार सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हमारा समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। हमारे पास जो सर जी थे इनका टाइम बहुत कम था, बहुत कीमती था, और कुलभूषण जी का भी समय जो है वो उनके पास आज कम है। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, दोबारा जरूर इनको बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और जानेंगे नेचुरोपैथी के और तरीके। तो आप लोग सभी प्लीज पूरा प्रोग्राम देखें, जो पूरा आगे शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, मैंने देखा है कि आज लोग मेडिटेशन की तरफ जाने को बढ़ रहे हैं, मैं खुद भी। लेकिन जैसे कि कुलभूषण जी ने भी सवाल पूछा सर से कि हम लोग करना चाहते हैं लेकिन हमारे जो विचार है वो दिमाग में इतने घूमते हैं, हम जैसे ही बैठने लगते हैं पता नहीं पीछे से क्या क्या दिमाग में आने लगता है, तो हम कर ही नहीं पाते। तो उसका भी तोड़ सर जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से हमने अपने मन को शुद्ध करके, तन को शुद्ध करके ध्यान लगाना है और अपने अंतर मन को मजबूत करना है। तो जहाँ पे कोरोना जैसी महामारियों का कोई तोड़ नहीं है, वहां पे मेडिटेशन, नेचुरोपैथी इसका एक बहुत ही मजबूत, बहुत सेहतमंद और बहुत ही अच्छा और मुफ्त का तरीका है जिससे हम किसी भी तरह की बीमारी से बचे रह सकते हैं। इन विधियों को अपनाएं, इनकी बातों को सुने और आगे अपने परिवार के साथ भी शेयर करें। दोबारा हम फिर जरूर मिलेंगे और इनसे, इनके जो ज्ञान का खजाना है थोड़ा थोड़ा इनका हम और लेंगे। तो आशा है, उम्मीद है आप सब लोगों को ये जो आज का प्रोग्राम है हर बार की तरह बहुत पसंद आएगा। लेकिन ये प्रोग्राम हर प्रोग्राम से ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे बॉडी के बारे में है, हमारे तन के बारे में, हमारे मन के बारे में है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा परिवार हेल्दी है, हमारा परिवार हेल्दी है तो हमारा संसार हेल्दी है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी खजाना है वो है हमारी सेहत। इसी के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सबका। कुलभूषण जी, सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180।
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com।